जो पहला बैच था 70 टेररिस्टों का जो JKLF से ताल्लुक रखता था, AK-47 राइफल्स के साथ लड़कों को अंदर भेजा गया। तो JNK पुलिस ने AK-47 राइफल देखी नहीं थी। कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया जिसमें एक मेरा दोस्त था। ये मुझे गोली लगी थी, मेरा हाथ ये कटा हुआ है। ये दुकानों के ऊपर छत पर UMG फिट की थी और जैसे ही गाड़ियां आई उन पर UMG से फायर किया। उसके बाद मेरी कार थी जिस पर मेरे ख्याल हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स लगी। वो राइट साइड के फ्रंट शीशे से निकली, उसने मेरा हाथ काट दिया। ये हाथ कट गया था, ये नया बनाया। तो मेरे दोनों DSP, एक की डेथ हो गई, एक SHO की डेथ हो गई। स्प्लिंटर जो है पीछे के विंडो से निकलकर मुझे हेड में, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ जख्म है, ये पंक्चर कर गया स्कल को। तो गाड़ी में तो खून इतना हो गया जैसे बकरा कटता है। कंधार हाईजैकिंग हुई, वो एक भारत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन। Thank you so much, sir, for joining us. Thank you. So, sir, we'll first start with your education and the time, like when did you decide to join the civil services? I think while I was studying in the college, I actually studied in village Mahanpur, which falls in Tehsil Basoli, district Kathua. So I come from that village, and initial education, schooling was up to 10th. Okay. I studied in that village, and then came here in Government Gandhi Memorial Science College, Jammu. In the 11th, so I did my 11th and 12th from GGM Science College. Then, in fact, my parents wanted me to become a doctor, as generally in JNK, you know, yeah. the two That's the streams, culture, yeah. two streams, medical and engineering. Every child's dream is there. So like that, my parents also had that dream. But it so happened, I think destiny had something else in mind. I had in those days scored first division. Okay. And generally for people with first division, those days the written test was not there. Those आजकल you have no written test. Those days there used to be no written test for the medical entrance. So most of the people who on the merit from the university or whatever stream you come from, pre-medical, so that would decide your percentage of marks would decide your entry. And as our secretariat plays its role, I think destiny had something else for me. So I realized that my name did not figure in the medical list. Even after getting like first division. And there were people with second division who figured in the merit list. Then I was shortlisted amongst the 5 candidates for a veterinary medicine seat in Chennai. So I went to Chennai, Madras Veterinary College. Now I had a background from where it was not possible for me to fight a case in the High Court, go to court, because neither you have resources. Yeah, makes sense. You don't have that kind of money and know-how, legal know-how. So best way, when I got the admission in Madras Veterinary College, I went there. So that is anyway, destiny had much better plans for me. So I went, joined there, was studying, but then I got an atmosphere, a friendship of some boys who were all preparing for civil services. So in Chennai only. In Chennai. So I think that was a turning point, because that would not have happened here in Jammu. So I think destiny had something else in stake. So
Policing, I had never even dreamt of. So when I appeared in the civil services, in the first attempt, I got into the Central Service, Indian Information Service, where I met my wife also. Second attempt, I got into Indian Police Service, got my, because of higher merit, I was 148 rank, All India. So I think J&K आपका पहला प्रेफरेंस था एज ए कार्डर या आपका और कौन कौन से obviously it was my first Okay. preference. J&K, I belong to this place. Obviously, though, that was my first choice. So I got J&K. I was very happy. But what happened when I came here, suddenly, 87, 88, situation turned very bad. And we have seen, I think, one of the worst situation in anywhere in the country. What J&K witnessed last three and a half decades, no one else had seen this. Sir, so since you talked about insurgency and like how it evolved, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा हमें टाइमलाइन देंगे कि जब आपकी पहली पोस्टिंग हो गई तो फिर उस टाइम इंसर्जेंसी किस लेवल पे थी और फिर पीक कैसे आया, थोड़ा सा टाइमलाइन अगर हमारी ऑडियंस को देंगे। देखिए, हम 87 में वापस बेसिक ट्रेनिंग करके 86 बैच हूँ मैं। दिस इज 1987 की बात है। 87 उन्हीं दिनों ऑपरेशन टोपैक जो पाकिस्तान जनरल जिया उल हक के टाइम पे ये प्लान किया गया कि हर बार पाकिस्तान ने कोशिश की 47 में, 65 में, 71 में कि किसी तरीके से कश्मीर को हथियाया जाए। तो वो क्या करते थे, वो बाहर से लड़कों को हथियार दे के ट्रेन करके अपने फौजियों को बनाकर यहाँ भेजते थे। लेकिन 47 में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा, 65 में भी देखना पड़ा। तो ऑपरेशन टोपैक डिफरेंट इस तरह था, उन्होंने सोचा कि हर बार हम बाहर से लड़के ले जाते हैं, व्हाई नॉट दिस टाइम हम ऐसा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लड़कों को पाकिस्तान लिया जाए, उनको रेडिकलाइज किया जाए, उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाए, उनको हथियार दिए जाए, ट्रेनिंग दी जाए और फिर उनको जम्मू कश्मीर में भेजा जाए और यहाँ फिर वो एक बवाल सा पैदा करें, इंसर्जेंसी पैदा करें। तो और उनको वायदा किया गया कि फिर पाकिस्तान की फौज आएगी आपकी मदद के लिए, जो कभी नहीं आनी थी, ना आई कभी भी, पिछले 35 सालों में तो आई नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो ये जानती है कि वो भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। और तीनों बार वार उन्होंने शुरू की, 47 में भी, 65 में भी, 71 में, और तीनों बार हार गए, बुरी तरह से हारे। हालांकि वो अपने लोगों को बताते थे कि भारत ने अटैक किया और हम जीते। अब थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू इंटरनेट, अब उन पाकिस्तान में भी लोगों को पता चल गया, क्योंकि सच्चाई छुपाई सर आप एक भूल गए, 99 वाला भूल गए आप, 3 भूल गया, तो अब चौथा भी था, वो भी कारगिल। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट कारगिल वाला। तो ये ऑपरेशन टोपैक था जो जनरल जिया उल हक ने 83-84 में कंसीव किया। तो उनका प्लान था कि अंदर से लड़के लेकर उनको रेडिकलाइज ट्रेनिंग करके हथियार देके भेजा जाए। तो वही हुआ और हमने कुछ गलतियां यहाँ की, पॉलिटिकल भी, जैसे यहाँ अलेज किया जाता कि 87 की इलेक्शन में रिगिंग हुई नहीं हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक परसेप्शन है जम्मू कश्मीर में कि ऐसा हुआ और कुछ तो सदाकत होगी। तो हमने एक ऐसा माहौल दे दिया जिसका पाकिस्तान इंतजार कर रहा था। और एक जो मफ के लोग थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ी 87 की, उनको अपॉर्चुनिटी एक दे दी कि डेमोक्रेटिकली हम पावर में नहीं आ सकते, हम हथियार उठाएंगे। ऑलरेडी वैसा सेंटिमेंट बनाया जा रहा था कश्मीर में 32 से। तो वो उसका फायदा पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि उसी वक्त वो इंटरनेशनल हालात भी वैसे बन रहे थे उस वक्त, पैलेस्टाइन, ये जो सिचुएशन थी। और
और सबसे बदतर बात यह है कि भारत का मीडिया वो सबसे ज्यादा हाईलाइट करता था। आई डोंट नो, आप छोटी उम्र के हैं, तब मैं हाँ। बूढ़ा आदमी हूं, मैंने देखा और हम हैरान होते थे। दूरदर्शन सबसे ज्यादा दिखाता था वो। भाई, आप ही प्रोजेक्ट लड़कों को दिखा रहे हो कि पैलेस्टाइन में ये हो रहा था, आप भी ये करो जी। ना। दिस इज अ मैटर ऑफ रिसर्च फॉर पीपल। जो इस जो कश्मीर सिचुएशन को स्टडी करेंगे, भाई उसमें देखना चाहिए कि आपका गवर्नमेंट मीडिया किस तरह से टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। आप वो चीजें बार बार दिखा के, तो इंटरनेशनल हालात उस वक्त रशिया का वो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान। हुआ, उनका फिर वहां से पांव उधेड़ देना, और ये सारा जो सारी सिचुएशन बन रही थी, और हालात यहाँ ऑपरेशन टोपैक इम्प्लीमेंट करके, और AK-47 राइफल्स के साथ लड़कों को अंदर भेजा गया, और फिर वहां। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपके लोग दर्शकों को पता होना चाहिए कि जो पहला बैच था 70 टेररिस्टों का, जी। जो JKLF से ताल्लुक रखता था, और जो पार गए, उनको जो ट्रेनिंग दी, हथियार देकर वापस भेजा, वो JNK पुलिस को इंफॉर्मेशन, उस वक्त की जो पुलिस के लोग अफसर थे, उनको ये भनक लग गई, और उनमें से कुछ लोग पकड़े गए। उनकी इंटेरोगेशन से पता चला कौन कौन इन्वॉल्व है, हथियार कहाँ है। वो सब जब पकड़े, तो JNK पुलिस ने AK-47 राइफल देखी नहीं थी। फौज से पता चला कि ये AK-47, बिकॉज हमारे पास तो 303 राइफल होती थी। और वो सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम, 70 में से मेरे ख्याल 50-60 मेजॉरिटी उनको पकड़ लिया गया। लेकिन गवर्नमेंट, उस वक्त की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और यहाँ शायद स्टेट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने क्यों ये ऐसा डिसीजन लिया, उन सबको छोड़ दिया। आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट कि ये यंग लड़के हैं, भड़के हुए हैं, बट उस वक्त की भारत सरकार ने कैसे अलाउ किया स्टेट गवर्नमेंट को इनको छोड़ देने? आप बताओगे, एक पाकिस्तान का प्लान है ऑपरेशन टोपैक इंप्लीमेंट करने का, और वो आपके लड़कों को हथियार देकर ट्रेनिंग के लिए पार लेकर उनको वापस भेजते हैं यहाँ, और वो जब पुलिस पकड़ लेती है, तो आप बजाय उनको सजा देने के, जेलों में भेजने के, आप उनको छोड़ देते हो। तो आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इट वाज ए पॉलिटिकल डिजास्टर्स डिसीजन। मेरा ये मानना है कि ऐसी गलतियां कुछ पॉलिटिकल लेवल पे हुई हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, 87 की इलेक्शन, दूसरा जी। ये जी। जो मैंने कहा, तीसरा रुबैया सैयद की किडनैपिंग के बाद जी। एकदम वो जो 5 टेररिस्ट छोड़ दिए गए, उस वक्त बवाल कश्मीर में मचा कि माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घुटनों पर लाया चंद लड़कों ने जिनके पास AK-47 थी। तो आपने पूरे कश्मीर में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि भारत सरकार को घुटनों पर लाया ना। ऐसे डिसीजन जो थे, मैं समझता हूं बहुत डिजास्टर से। इसी तरह एक डिसीजन हुआ, अगर आपको याद होगा, ये मैंने कुछ और चैनल्स में नहीं बोला, आपको बता रहा हूं, 90s में मुझे याद है एम्प्लॉइज की स्ट्राइक हुई। 5 लोग उसको लीड करते थे, उनको एम्प्लॉयज की। बाद में जी। सस्पेंड किया गया। तो एम्प्लॉइज की, उस वक्त शायद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनकी सरकार थी यहाँ। मुझे अब याद नहीं, शायद गवर्नर जगमोहन थे या कौन थे। तो 2-3 महीने वो स्ट्राइक चलती रही, तो उनको सस्पेंड किया। कहाँ पे ये? ये जम्मू कश्मीर पे पूरे। तो एम्प्लॉइज की स्ट्राइक पे ऑलमोस्ट घुटने पे आ गए थे एम्प्लॉइज। तो सडनली वन डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भारत सरकार ने सारी डिमांडें मान ली एम्प्लॉइज की, और अल्टीमेटली उनको हीरो बना दिया। तो आप ऐसी ऐसी पॉलिटिकल ब्लंडर्स करते आए हो, जिससे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में हालात बिगड़ते गए। तो ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अर्ली 90s में और लेट 80s में कुछ ऐसे पॉलिटिकल ब्लंडर्स हुए हैं, जिसकी वजह से हालात बजाय सुधरने के और खराब हुए।
सर आपने अभी JKLF के बारे में थोड़ा जिक्र किया, उसको हमारी ऑडियंस के को बताएंगे कि JKLF क्या था, उसके फाउंडर कौन थे और कैसे ये इसका इमरजेंस कैसे हुआ? JKLF एक्चुअली अगर आपको याद होगा, अमानुल्लाह खान इसके पहले प्रेसिडेंट होते थे और वो POK में वहीं बना। और उसमें यहाँ JNK में तो यासीन मलिक उसका हेड था, जावेद नलका और काफ़ी लोग थे। तो शुरू में JKLF बनाई गई। JKLF बेसिकली स्टैंड करती थी, उसका था कि कश्मीर को आज़ाद कर, हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है ना। उनका ये नहीं था कि हमें पाकिस्तान से मर्ज, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन का पॉलिटिकल मोटिव ये था कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। फर्क है। JKLF आज़ादी, उस वक्त आज़ादी के नारे लगते थे। उस सेंटीमेंट को पाकिस्तान ने कैश किया और उस सेंटीमेंट को कैश करके JKLF को पहले दिया। लेकिन ये वाला सेंटीमेंट पाकिस्तान को सूट नहीं कर, पाकिस्तान ने सिर्फ इस सेंटीमेंट का फायदा उठाया क्योंकि उनका एम है कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना। तो आज़ादी से तो उनका कुछ नहीं फायदा होता है, तो इसको एक्सप्लॉइट किया। बाद में उनको लगा कि JKLF को अब हमारी JKLF को हम बैक नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हिजबुल मुजाहिदीन रेज कर दी और JKLF को फंड करना बंद कर दिया और उनको दबा दिया। JKLF शुरू में अर्ली 88, 89, 90, 91 में यही ज़्यादा एक्टिव था। 91 के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और हिजबुल मुजाहिदीन और उसके बाद फिर लश्कर और जैश वगैरह आ गए। तो JKLF इनफैक्ट मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था एज SP बडगाम 90 में, मैं उस वक्त SP बडगाम था, 1990 महीना मुझे अब याद नहीं, मैं SSP बडगाम था। तो एक दिन वहाँ वो बेसिकली ट्रैप था। एक दिन आरिजाल एक एरिया है बडगाम का, वहाँ से एक डेपुटेशन आया, उन्होंने आई थिंक जुमा का दिन था, फ्राइडे थी, तो मेरे ऑफिस में आए कि सर आपने हमें खुदा के भरोसे छोड़ा है, आप और DC साहब आते नहीं हैं। हालात बहुत ख़राब थे उन दोनों, बहुत मिलिटेंसी थी। तो मैंने कहा ठीक है आप वेट करें, मैं DC साहब से बात करता हूँ, हम मंडे को आएंगे आरिजाल। तो मैंने मिस्टर DN त्रिसल होते थे DC, मैंने फ़ोन उठाया, उनको फ़ोन किया। ये DC बडगाम थे? DC बडगाम थे। मैंने त्रिसल साहब, हम दोनों ऐसे ऐसे लोग आए हैं वो आरिजाल से, वो चाहते हैं कि हम चलें वहाँ, उनके कोई इश्यूज हैं, कहते हैं मिलिटेंटों के हवाले हमको छोड़ा है। बेसिकली दैट वाज अ ट्रैप, आई डिडंट नो इट। नई मिलिटेंसी थी, तो हम अनाउंस कर दिया कि मंडे को। जब मैंने जाना था उसी वक्त वायरलेस, उन दिनों मोबाइल नहीं होते तो वायरलेस मैसेज आया जिप्सी में, मैं 10 बजे बैठ रहा था तो मैसेज आया कि उस वक्त जो मेरे बॉस थे DIG कश्मीर अजहर आलम पंजाब काडर से आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप पट्टन में CRPF कैंप में आइए फॉर अर्जेंट ऑपरेशनल मीटिंग, आपको कोई मीटिंग है। तो मुझे बजाय आरिजाल जाने के फिर उधर जाना पड़ा, तो मैंने DC साहब को मना कर दिया। जब मैं उधर चला गया तो जो मेरे सबॉर्डिनेट थे DSP हेडक्वार्टर और DSP DR, उन्होंने सोचा कि SSP साहब बिजी हो गए, हम चले जाते हैं। तो उन्होंने एक गाड़ी ली, वो दोनों DSP और एक SHO, तो वो दोनों DSP सैयद और DSP शाह, कदीर शाह, तो वो दोनों एक गाड़ी लेकर चले गए आरिजाल। वहाँ उन पर हमला हो गया। वो JKLF के टेररिस्टों ने ही प्लान किया था और उसमें वो जाके पूछने लगे, उन्होंने ये सोच के अटैक किया कि DCSP आए हैं। अच्छा। लेकिन वो एक्चुअली उसमें मेरे दोनों DSP, एक की डेथ हो गई, एक SHO की डेथ हो गई, एक DSP हेडक्वार्टर जख्मी हो गया। खैर उनको, वो लंबी स्टोरी है, उसको उनको बचाया। मैं बता रहा हूँ JKLF उन दिनों बहुत एक्टिव होता था। वो शुरू में बाद में पाकिस्तान ने स्क्यूज कर दिया JKLF को। JKLF ने एयरफोर्स पे अटैक किया था, अगर आपको याद होगा, जिसका केस यासीन मलिक आज भी फेस कर रहा है। JKLF के लोगों ने ही, अगर कश्मीरी पंडितों का अगर आपने देखा जो वहाँ किलिंग्स हुई,
वो शुरू शुरू में इन्होंने ही की हैं। जैसे वो नोटोरियस केस जो अनंतनाग का है, क्या नाम था उसका, पीटा कराटे, जिसने दूरदर्शन पे कहा कि मैंने 25 कश्मीरी पंडितों का जी कत्ल किया, जिसमें एक मेरा दोस्त था। तो जेकेएलएफ उन दिनों बहुत एक्टिव होता था, 87, 88, 89, 90, 91 तक। उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल हो गया, फिर दूसरी तंजीमें आना शुरू हो गई जो पाकिस्तान का एजेंडा परस्यू करते हैं। अच्छा सर, अभी आपने जो बोला कि ट्रैप था, जो लोग आपको इनविटेशन देने आए थे, तो जब ये अटैक हुआ उसके बाद फिर उन लोगों पे कुछ कार्रवाई हुई? जो करने इसके पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और वो टेररिस्ट भी फिर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, और उसमें जो जो पुलिस कर सकती थी किया, लेकिन आम लोगों को तंग नहीं किया। आम लोगों के मुद्दे भी थे, मसले भी थे, उनको हम रिजॉल्व करते थे। बट यस, जो टेररिस्ट से मिले होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। सर अभी मैं बात करते करते आपके थोड़े हाथ पे, अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू कैन आई मीन टॉक अबाउट इट, ये क्या हुआ था और इसके बारे में? ये मुझे गोली लगी थी, मेरा हाथ ये कटा हुआ है। ये दूसरा अटैक है। ये वो मैं एसपी बडगाम के टाइम का बता रहा, 90 अच्छा। का। ये जो है 99 में हुआ। 99 में मैं डीआईजी बारामूला रेंज था। बारामूला रेंज में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बांदीपुर। तो ये पूरा एरिया उसमें आता था। सोपुर भी एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट था। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते थे। तो मैं ये बॉर्डर रेंज है, वहाँ का डीआईजी था। 99 की बात है, कारगिल से पहले, अगर आपको याद हो, कारगिल भी 99 में हुआ। 99 में। तो ये 23 मार्च 99 की बात है, कारगिल वॉर से थोड़ी देर पहले। तो उन दिनों क्या हुआ कि जब कारगिल में हालात खराब हो रहे थे, तो फौज जो है वो विड्रॉ होकर, बॉर्डर से विड्रॉ होकर कारगिल जा रही थी। तो काफी गैप हो गए, तो बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट हो गए, जिनको हम जैश और एलईटी के लोग, जो फॉरेन टेररिस्ट, इन तंजीमों में ज्यादातर उन दिनों फॉरेन टेररिस्ट होते थे। बहुत सारे अंदर आ गए, और बहुत, अगर आपको याद होगा, आपने सुना होगा, फिदाई अटैक बोलते थे ना, जिनको हम सुइसाइडल अटैक बोलते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे, आर्मी कैंप पे, सीआरपी, बीएसएफ, जेएंडके पुलिस के कैंपों पर, हमारी पुलिस लाइन, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अटैक करते थे, पुलिस स्टेशनों पर सुइसाइडल अटैक होते थे। तो ऐसा ही पहला अटैक हुआ था डीआईजी बीएसएफ बांदीपुर के कैंप में, उस पर आपके अटैक से पहले? हाँ, मेरे से पहले। दूसरा अटैक मेरे ऊपर हुआ। तीसरा, एक आर्मी के ब्रिगेडियर और कर्नल को माइन लगा के उड़ाया था उन्होंने कुपवाड़ा में। तो ये 3 बड़े अटैक हुए थे, जिसमें मेरा वाला अटैक 23 मार्च 99 में हुआ। मैं उन दिनों आईजी कश्मीर का चार्ज होल्ड कर रहा था। वो छुट्टी गए थे, तो मुझे उस वक्त के पुलिस चीफ ने कहा था, आप कश्मीर श्रीनगर में आ जाना, वहीं रहना। तो चूंकि मेरा हेडक्वार्टर बारामूला था, मैं वहां आया हुआ था। श्रीनगर में मुझे रुकना था 4-5 दिन के लिए, जब तक मैं चार्ज होल्ड कर रहा। लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे बने, किसी वजह से मुझे बारामूला उसी दिन वापस जाना पड़ा, जिस दिन मैं आया। रात को जब जा रहा था, तो मेरे ऑपरेटर ने सेट पे बोल दिया कि उसको लगा कि वापस जाएंगे तो वहां खाना नहीं मिलेगा। तो उसने, एक लड़का था पुलवामा का, उसने फोन वायरलेस पे कह दिया कि साहब वापस आ रहे हैं, खाना रेडी रखो। वो खाना मुझे बहुत महंगा पड़ा। तो वो कहीं इंटरसेप्ट, उसने जानबूझ के नहीं बोला, आउट ऑफ कंसर्न, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गया वायरलेस मैसेज, क्योंकि उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। मैं 99 की बात कर, तो वायरलेस सेट्स आजकल तो उसमें साइफर है, यू कांट इंटरसेप्ट इट। वो उन दिनों वो नॉर्मल था, तो उसको इंटरसेप्ट किया एक टेररिस्ट ग्रुप ने, जो क्रैंकशेवन एक जगह है सोपुर के पास। उसने दूसरे ग्रुप जो टंगमर्ग से नीचे था उसको कांटेक्ट किया। ये 8 टेररिस्ट का एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये कोई 15-16 टेररिस्ट, आई थिंक 17-18 टेररिस्ट थे। ये
दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे एम्बुश लगाएंगे। एक पुतखा जगह है, सोपुर क्रॉसिंग से पहले 1 किलोमीटर पहले पुतखा गांव है। वो दोनों टेररिस्ट ग्रुप आए, रात का वक्त था, मैं कोई आई थिंक 8 साढ़े 8 के का रात का वक्त था, हल्की सी बारिश हो रही थी। 23 मार्च को ठंड होती है कश्मीर में और जल्दी दे रहा होता। तो मैं जब जा रहा था श्रीनगर से, तो मेरी फ्रंट एस्कॉर्ट JNK पुलिस की थी, बीच में एक एम्बेसडर बुलेट प्रूफ कार थी जिसमें मैं बैठा था, और एक पीछे CRP की एस्कॉर्ट थी। तो हमारे उन्होंने दोनों गांव खाली करा के दोनों तरफ सड़क के जो दुकानें होती हैं, दुकानों के ऊपर छत पर UMG फिट की थी दोनों तरफ, और जैसे ही गाड़ियां आई उन पर UMG से फायर किया। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है अगेंस्ट AK-47 राइफल है, बट नॉट अगेंस्ट UMG। UMG इज रिपीटेड फायर, बार बार फायर करता है तो वो तोड़ देता है। तो उसने जो बुलेट प्रूफ ग्लास है उसको पंक्चर करके वहां से गोली निकली, और जो खिड़की होती है वहां भी लोहा पतला होता है, वहां से एक गोली निकली। एक गोली जो फ्रंट से निकली शीशे से, वो मेरे ड्राइवर था, बारामूला का सिख लड़का, उसको यहाँ लेफ्ट शोल्डर को पंक्चर करके निकल गई। दूसरी गोली जो राइट साइड के फ्रंट शीशे से निकली, फ्रंट विंडो से निकली, उसने मेरा हाथ काट दिया। ये हाथ कट गया था, ये नया बनाया, दिस इज ऑन होल्डिंग ऑन पिन, ये पिन पे खड़ा है, और ये पूरा हाथ काट गया। इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो मुझे ये दिल्ली में बनाया गया। तो उस वक्त जब गोलियों की बौछार हो रही थी, तो पहली गाड़ी हमारी निकल गई जो JNK पुलिस की थी, उन पर गोलियां आई लेकिन वो बच गए। उसके बाद मेरी कार थी जिस पर मेरे ख्याल हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स लगी, उसमें से कुछ अंदर आ गए। तो जैसे मैंने कहा ड्राइवर जख्मी हुआ, दूसरा मेरी, तीसरा उन्होंने ग्रेनेड मारा जिसका एक स्प्लिंटर जो है पीछे के विंडो से निकल कर मुझे हेड में, यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ जख्म है, ये पंक्चर कर गया स्कल को। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला बचाने वाला ज्यादा वो होता। तो वो स्प्लिंटर जो ग्रेनेड का था उस स्कल को पंक्चर करके उसने ब्रेन को डैमेज नहीं किया। अगर ब्रेन को डैमेज करता तो पैरालिसिस हो सकता, लेकिन बहुत ब्लीडिंग हुई। तो गाड़ी में तो खून इतना हो गया जैसे बकरा कटता है, तो काफी ब्लीडिंग, हाथ से भी इधर से भी। तो मैंने ऑपरेटर का वायरलेस सेट कंट्रोल में लिया और कंट्रोल रूम बारामूला को कहा कि इस तरह से अटैक हुआ है, फौरन रीइंफोर्समेंट भेजिए, और DC SP SHO को बोलिए कि हॉस्पिटल थिएटर रेडी होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर रेडी होना चाहिए। और ड्राइवर जो है वो घबरा गया कि सर मुझे गोली लगी। मैंने पीछे से उसकी पीठ पे हाथ, जख्मी हाथ से मारा कि तू गाड़ी निकालो। तो उसका एक्चुअली गियर निकल गया था, और गाड़ी बुलेट प्रूफ भारी होती है और स्लिपरी था रोड, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब मैंने पीछे से पुश किया तो उसने गियर लगा, दर्द में ही गियर लगाया, तो गियर लग गया। गियर लगने से गाड़ी खिंच गई, तो अदरवाइज हम मारे जाते। तो जब गाड़ी खिंच गई तो पीछे से एक टेररिस्ट आया, वो चाहता था होस्टेज लेना मुझे। तो उसने लेफ्ट साइड की जो वो विंडो थी खोलने की कोशिश की, फॉर्चुनेटली वो लॉक्ड थी, ही कुड नॉट ओपन इट। वो चाहता था कि होस्टेज। सर जो आपके पीछे जो एस्कॉर्ट थी CRPF, वो आ रही थी पीछे, अच्छा। उन्होंने गोली चलाई, लेकिन उन पर भी फायरिंग आई। उन पर जब गोलियां लगी, उसमें एक हेड कांस्टेबल था CRP का, उसकी आंतड़ियां निकल गई, यहाँ पेट फट गया, तो वो 50 कदम पे उसकी डेथ हो गई। मीनवाइल जब मैंने वो उसको ड्राइवर को पुश किया तो उसने गाड़ी निकल गई। तो फिर कंट्रोल रूम को कहा, मुझे वहां से अभी भी 10 किलोमीटर था बारामूला, तो मुझे माई वरी वाज कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो खून ब्लीडिंग से डेथ हो जाएगी, लॉस ऑफ ब्लड से डेथ हो। लेकिन एनीवे आई वाज लकी, पहुंच गया, वहां सब रेडी था, और वहां मुझे उन्होंने फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। लेकिन वहां उन दिनों हालत इतनी बुरी थी कि लोकल एनेस्थीसिया नहीं था। तो जिस तरह बोरी सीते हैं ऐसे सिया इसको, लोकल एनेस्थीसिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं था।
तो जैसे बोरी रस्सी से बोरी सीते ऐसे सिया। मीनवाइल वहाँ का जीओसी आ गया, जनरल नागराज होते थे जो अभी चीफ सेक्रेटरी डीसीए थे, और वहाँ के एसएसपी और एसएचओ। तो उन्होंने कहा कि फैसला किया कि सर को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर लेके जाना है। रात के वक्त हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता। फिर रातों रात आर्मी ने डिप्लॉयमेंट की, बीपी गाड़ी में मुझे श्रीनगर लेके वहाँ सर का स्प्लिंटर निकाला, और नेक्स्ट डे फिर मुझे दिल्ली ले गई, हाथ कंस्ट्रक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, देखने के लिए आए थे। सर जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम आपको मतलब आपके दिमाग में पहली क्या चीज़ आई जब ये हो रहा था? क्या थॉट प्रोसेस देखो, था उस इट्स टाइम? नेचुरल। मेरे दिमाग में 2-3 थॉट्स इमीडिएटली फ्लैश किए इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। पहला ध्यान जाता है मुझे गया उस सिखलाई पर जो नेशनल पुलिस एकेडमी में सिखाया जाता है कि जब ऐसा एम्बुश हो, अटैक हो, जहां आप दुश्मन को देख नहीं सकते, आपको पता नहीं वो कहाँ छुपा है, कहाँ से गोली चला रहा है, तो बेस्ट तरीका होता है वहां से निकलना। तो वो दिमाग में पहले आया कि यहां से निकला है। तभी मैंने ड्राइवर को पुश किया। इंजर्ड हाथ से कहा। दूसरा, भगवान कृष्ण का दिमाग में गया, जो नेचुरली गॉड की तरफ जाता है। और थर्ड वाज अबाउट फैमिली, कि मेरी परिवार, वाइफ, बच्चे, उनका ध्यान आता है। ये नेचुरल है, किसी को भी आएगा, ऐसा ही ख्याल आएगा। तो बट ऊपर वाले ने बचाना था। आई थिंक कुछ कर्म और लिखे थे करने। तो आपकी फैमिली को इसके बारे में कब पता चला? और उनको रात को नहीं पता रात को नहीं पता है ना। वो जब मुझे लिया जा रहा था श्रीनगर, तो मैंने कहा था फैमिली को नहीं बताना है, तो उनको सवेरे इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि रात को फिर वो डिस्टर्ब हो जाते। उसके बाद जब आप उस जगह से निकले होंगे तो कुछ ट्रॉमा या कुछ ऐसा आपके दिमाग में था वहां से निकलते वक्त? नहीं, वो ऐसा है कहाँ, किस, मतलब जहाँ पे ये एम्बुश हुआ तो ऐसा वहां है से जब गोली लगती है ना तो गरम गरम जख्म होता है उस वक्त। नहीं, मैं उस बाद वक्त की बात फाइट एंड फ्ली वाला वो Flee. जो साइक होता है, दैट इज द बॉडी में रिएक्शन होता है। उस वक्त गरम गरम इतनी तकलीफ बाद में होती है। नहीं, जब बाद आप उस वक्त पेन नहीं होती। बाद में उस जगह से निकलते थे तो कुछ सोच वगैरह आपके दिमाग में? हाँ, वो आती है, वो नेचुरली। जब भी वहां से गुजरते हैं वो याद आता है ना, इंसिडेंट याद आता है। तो चलिए, बट फिर मैं वहां से इलाज करके आया, उन सभी टेररिस्टों को आइडेंटिफाई किया, उनको न्यूट्रलाइज किया, सबको। तो अभी कैसी सिचुएशन है सर कश्मीर में? मच बेटर। कश्मीर हैज चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। तो अगर आप ये अगर आप 5 साल 90s का कश्मीर देखें, आज के लड़के तो, जो आज की जनरेशन है, और इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 90s में कैसा जम्मू कश्मीर था। कश्मीर की हालत कितनी बुरी थी, बहुत बुरी हालत थी। आपके डोडा की मैं बताता हूँ, आप डोडा से हो ना? जी जी जी। तो जब मैं बडगाम से आता था तो मैं डोडा के पहाड़ देखता था, तो मुझे लगता था कि अगर ये टेररिस्ट कश्मीर वैली वाले यहाँ आ गए तो कितनी खून खराबा होगा, एक दिमाग में आता था। और वही हो गया। तो जब देखते देखते 91 92 में क्या हुआ, स्पिल ओवर हो गया टेररिस्टों का फ्रॉम कश्मीर वैली टू द हिल्स ऑफ जम्मू, जो डोडा चिनाब वैली लगा लो, जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ है ना, ये माहौर तहसील, इस सारे इलाके में टेररिस्टों का फैलाव हो गया, और वो बारी बारी सारे पुलिस स्टेशनों को लूटने लगे। दैट इज हाउ इस इलाके में टेररिज्म इतना फैल गया, और यहाँ इतनी किलिंग्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसी आइडिया से विलेज डिफेंस कमेटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में, क्योंकि सोचते रहते थे कि कैसे, कितनी फोर्स लगाएंगे, कितनी आर्मी लगाएंगे। आप ब्रिगेड के ब्रिगेड डालो, आप पहाड़ों में खप जाते हैं, वो दिखता ही नहीं है। सीआरपी, बीएसएफ, फौज, तो लेकिन हर गांव में आप फोर्स कैसे रखेंगे, हर गांव में और आपके डोडा के पहाड़ी इलाकों में क्या है कि 5-5 घंटे का पैदल सफर, हर रोड तो एक ही है। कश्मीर वैली में हर गांव 2-3 जगह से कनेक्टेड है। डोडा के पहाड़ों में
एक सड़क है या दो सड़क है, बाकी जगह पैदल जाना। हाँ, पैदल आप 5-5 घंटे पैदल, फौज या सीआरपी या बीएसएफ पहुंचने में उनको तो चलने की भी आदत नहीं होती है, 5-5 घंटे लगते थे। तो रीएनफोर्समेंट आने में 5-5 घंटे लगेंगे, तो आप कैसे लोगों को बचाओगे? तो तभी ये वीडीसी की कंसेप्ट स्टार्ट हुई और लोगों को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी कि अपने आप को डिफेंड करो। और लोगों ने बहुत बहादुरी से लड़ा, डोडा के लोगों ने, बिल्कुल। रजौरी पुंछ के लोगों ने, किश्तवाड़ रामबन के लोगों ने टेररिज्म का बहुत मुकाबला किया। और अल्टीमेटली उसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे, मिलकर उन्होंने इसका मुकाबला किया। और 5-5 घंटे होल्ड करते थे जब तक री इन्फोर्समेंट आती थी, आर्मी की, पुलिस की, सीआरपी। तो इस तरह से इस इलाके को बचाया, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा और खराबी होती। सर अभी का जो जम्मू कश्मीर है और जो 5 साल पहले का जम्मू कश्मीर या 10 साल पहले का, तो उसमें आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो सिचुएशन कैसी है अभी आपको? देखो 90s में तो बहुत बुरी हालत थी, उसके बाद हालात में काफ़ी तब्दीली आई। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी 96 में डॉक्टर फारूक की, और फिर कारगिल हो गया, हालात बेहतर हुए, लेकिन कारगिल ने तबाही कर दी, फिर वो दोबारा हालत वैसी, फिर तो फिदाई अटैक और ये वो बुरी हालत स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा इलेक्शन हुई और 99 में मुफ्ती, सॉरी 2001 में, 2002 में शायद, मुफ्ती सैयद साहब की और कांग्रेस की हाँ। कोलिशन गवर्नमेंट आई। तो उसमें पहले से मुफ्ती सैयद साहब चीफ मिनिस्टर थे, बाद में आज़ाद साहब कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर बने, और उससे फिर हालात बेहतर होने लगे। 2008 तक हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे, लेकिन सडनली वो लैंड रो स्टार्ट हो गया अमरनाथ, या उसमें फिर वो पीडीपी ने विड्रॉ कर ली विड्रॉ सपोर्ट, किया। कांग्रेस गवर्नमेंट गिर गई। फिर इलेक्शन हुई, उसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी लोगों की डेथ हुई। उमर साहब की गवर्नमेंट बनी, उसमें फिर 2010-11 में उमर साहब की गवर्नमेंट के दौरान सिविलियन कैजुअलिटीज़ को भी 100 प्लस 108 कितने लोग मारे गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हालात बहुत इम्प्रूवमेंट हुई और सिचुएशन ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरह आ गई। 2014-15 15 लेन फिर बुरहान वानी, 16 में, हाँ। 7-8 जुलाई 2016 में बुरहान वानी का इंसिडेंट सर हुआ। आप कहाँ पोस्ट थे तब जब 16 का इंसिडेंट हुआ था? मैं डीजीपी प्रिजन था जब बुरहान वानी हुआ, और ये 7-8 जुलाई 16 में हुआ, और 2 महीने के बाद मुझे स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर लगा दिया, क्योंकि हालात इतने खराब थे। तो ये दोबारा 90 जैसी सिचुएशन, बहुत बुरी हालत। तो मुझे उठा के प्रिजन का चीफ से हटा के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया। 7-8 आई थिंक 8 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 सितंबर को मेरा ये ऑर्डर होता है, और 3 महीने 4 महीने में मुझे टास्क दिया गया इसको नॉर्मलाइज करना। और इतनी बुरी हालत थी कि कश्मीर में एक दिन में 50 से 60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी, और एक एक पत्थर वाली जगह पे जहाँ पत्थरबाजी होती थी सैकड़ों राइटर्स होते थे जो पत्थर मारते थे। सीआरपी, बीएसएफ, पुलिस के लोग जख्मी होते थे, जो भी फोर्सेस थी जेएंडके पुलिस की, और काफ़ी सैकड़ों की तादाद में जख्मी होते थे। और गोली कई जगह टीयर गैस चल रही, लाठी चार्ज हो रहा है, गोली चल रही है, और सारे, खासकर साउथ कश्मीर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था। लेकिन पूरे कश्मीर में कई जगहों पे सड़कें खोद दी थी, जहां बिजली के पोल और पेड़ काट के डाल दिए थे, तो मूवमेंट बंद हो गई थी। फोर्सेस बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि फोर्सेस को लगता था बाहर निकलते हैं हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती है, हम गोली चलाते हैं तो सिविलियन मरते हैं। तो जिनको शील्ड बनाते थे पत्थर मारने वाले, तो अल्टीमेटली उनका फिर उनके खिलाफ एफआईआर लग रही है। तो हालात इतने खराब थे, लेकिन उसको मैंने देखा जब मुझे स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया कि इस तरह से तो हालात, पुलिस कंट्रोल रूम में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मीटिंग लेते थे और सभी डीएम एसपी से बात करते थे।
तो मुझे लगा कि पीसीआर में बैठ के ये काम नहीं होगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो मैं कोर कमांडर एक जनरल सांधु होते थे और जो सीआरपी के चीफ थे, उन दोनों को लेकर मैंने कहा बारी बारी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने अनंतनाग से शुरू किया, फिर बाकी साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्टों में गए। हमारे जाने से एक्टिविटी शुरू हुई, जो सड़कें खोदी थी वो ठीक हुई, जो पोल थे बिजली के वो हटाए गए, पेड़ काटे हुए थे हटाए हम। लेकिन इन 3-4 महीनों में क्या हो गया कि टेररिस्ट रैंक्स बढ़ने लगे। तो कहाँ 200-300 टेररिस्ट होते थे, वो हजारों हो गए। तो पूरे हालात बिगड़ गए, बहुत बुरी हालत हो गई। लिबरेटेड जोन्स बन गए, मतलब उन इलाकों में कोई जाता ही नहीं था। लिबरेटेड, वहां टेररिस्टों का राज चलता था। तो मैंने कहा ऐसा चलेगा नहीं। तो हमने फिर क्या किया कि एक तो टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया, जिसमें आर्मी की और सीआरपी की सुपीरियर टैक्टिकल पावर को इस्तेमाल किया, और पुलिस का ग्राउंड कनेक्ट इंफॉर्मेशन पुलिस को लोकल लोगों से आती थी, और लिस्ट ड्रॉ की टॉप कमांडर्स की, फर्स्ट 10। फॉर एग्जाम्पल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, हु आर द टॉप 10 कमांडर, वन बाय वन टारगेट देम। तो ऑपरेशन ऑल आउट जो आज भी चल रहा है, और हजारों टेररिस्ट उसकी वजह से मारे गए, और बहुत आज हालात जो बेहतर कश्मीर में बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑल आउट। दूसरा चैलेंज था पत्थरबाजी, जो आज आप देख रहे हैं। तो पत्थरबाजी को डील करने के लिए मेरे ख्याल हजारों एफआईआर दी उस वक्त में, हजारों, नॉट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर, 5000 से ऊपर एफआईआर दी। और बहुत सारे हजारों जो लोग इसमें इंस्टिगेटर थे, जो लीड करते थे, जो पत्थरबाजी करते थे, उनको नामजद किया एफआईआर में, और उनके खिलाफ केसेस चलान किए, उनको पीएसए में डिटेन किया, मेरे ख्याल थाउजेंड्स में, और उनको बाहर भेजा, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में आए। और फिर 4-5 महीने में बाई जनवरी फरवरी थिंग्स, ये पत्थरबाजी में कमी आई। फिर जो मिडल ऑफ 2017 तक हालात काफ़ी कंट्रोल में आए। ठीक है सर। कोई ऐसा एक इंसिडेंट, कोई बिहाइंड द सीन्स किसी एक मेजर काउंटर इंसर्जेंसी का जो आप शेयर करना चाहें? कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि ब्रेक थ्रू आपको मिला और उसमें आपने बहुत बड़ी सक्सेस मिली, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट? देखो, एक बार यहाँ डीआईजी जम्मू था मैं, तो यहाँ एक गैंग पकड़ा, टेररिस्ट ग्रुप पकड़ा, जिनसे 40 पिस्टल्स रिकवर हुई, 40। और वो कहने लगे, वो लश्कर का ग्रुप था, उनका कहना था कि ये 40 पिस्टल्स हमने पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। और वो कहते हमने जम्मू कश्मीर को तो ऑलरेडी कर लिया है कवर, अब हमारी नज़रें पूरे भारत में हैं। तो हम ये 40 पिस्टल जो है पूरे हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह, यूपी, बंगाल, दिल्ली, हर जगह बांटनी है, और इससे हमने बवाल पैदा करना है। तो उस वक्त वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, उनके सोर्सेज जो वहाँ उनके कंटेक्ट थे, उनको पकड़ा। एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसमें पकड़ा गया। तो इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि हमारी बहुत लंबी इसमें, एक बार हमने एक वो पकड़ी, ये होती है ना सूमो, टाटा सूमो की जो पिछला वो होता है दरवाजा, उसको जब चेक किया, उसके अंदर AK-47 राइफल भरी थी। उसका सिस्टम निकाल के AK-47 राइफल डाली थी, जो अयोध्या में अटैक में इस्तेमाल हुई। मतलब ये कब की बात है सर? ये अब मुझे ईयर नहीं याद, 90, बहुत सारे इस तरह के, बहुत सारे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए। सर, जब कोई, अगर मैं जे.एंड.के पुलिस का नाम लूँ तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? जे.एंड.के पुलिस इज अ वेरी ब्रेव फोर्स। जे.एंड.के पुलिस बहुत बहादुर, काबिल, लॉयल, और मैं समझता हूँ देश में इससे बढ़िया पुलिस ही नहीं है। आप
मुझे एक और पुलिस फोर्स बताओ पूरे कंट्री में जिसने जेएनके पुलिस जैसी कुर्बानी और काम किया हो। पूरे कंट्री क्या, मैं पूरे एशिया, इंडिया, वर्ल्ड में कह सकता हूँ ऐसी लोकल सिविल पुलिस देखने को नहीं है। और देखो, 1700 लोगों ने अपनी जान नुशावर की इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लिए, इस स्टेट को बचाने के लिए, लोगों के शांति के लिए, यहाँ पीस के लिए। मेरे ख्याल से हजारों पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और उसमें 7 डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के लोग हैं जिसमें मैं भी एक हूँ। ये मैं जैसे अपना पता, इस तरह से JN सक्सेना, वीराना आवेली साहब, डॉक्टर अशोक भान, के राजेंद्र कुमार, राजन बख्शी साहब, मैं और एक और अभी नाम नहीं याद आ रहा, 7 मैंने गिने डायरेक्टर जनरल रैंक के लोग हैं। तो आप बताओ, इज ऑफिसर लेड फोर्स। और यहाँ मैंने देखा है फौज से भी ज्यादा दिलदार लड़के हैं, मतलब वो परवाह नहीं करते जान की बाजी की, इतने अच्छे। और एसपीओस का बहुत ज़बरदस्त रोल है जेएनके पुलिस के एसपीओस का। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक लिबरल पॉलिसी इनको वो करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। और इसी को रिकग्नाइज करने के लिए राष्ट्रपति 2003 में कलर देने के लिए भारत के राष्ट्रपति यहाँ आए 2003 में, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। तो वो यहाँ हमारी एकेडमी में उधमपुर में कलर्स देने के लिए आए। तो वो इसी बात को रिकग्नाइज करने, तो जेएनके पुलिस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, शायद लोग देश में नहीं जानते हैं ये। इवन जेएनके के लोग शायद इतना नहीं जानते, तो हाँ। ये बात सबको पता होनी चाहिए। यहाँ आर्मी वाला, सीआरपी वाला 3 साल की ड्यूटी पे आता है, उसकी फैमिली यूपी में, बिहार में है, और 3 साल के बाद वो चला जाता है पीस पोस्टिंग में। जेएनके पुलिस वाला 35 साल यही लड़ता है, उसकी बीवी वहीं शोपियां में बाजार में आटा लाती है, उसका बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए वहीं शोपियां में जाता है या डोडा में जाता है। तो उसको और 35 के 35 साल यहाँ रहना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। सर, अभी जेएनके पुलिस की बात हो रही थी, आर्टिकल 370 के राइट आफ्टर एब्रोगेशन, हम तो तब दिल्ली में थे, तो ये र्यूमर्स आ रही थी कि जेएनके पुलिस के आर्म्स को ले लिया गया है। आपको लगता कि जेएनके पुलिस के आर्म्स मतलब इतनी कुर्बानियां देने के बाद जितनी जो आपने कही? आई डोंट थिंक दिस र्यूमर वाज करेक्ट। मुझे नहीं लगता उनके हथियार ले लिए गए। सिर्फ देखो, ऐसा है, जेएनके इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो नेचुरल सेंटिमेंट भी होता है, एक भाई टेररिस्ट भी है, दूसरा भाई पुलिस वाला भी है, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कुछ स्टेप्स लिए जाते होंगे। बट जब आर्टिकल 370 हटाया गया, जेएनके पुलिस वाज वेरी मच एक्टिव। आई डोंट थिंक डिसआर्म किया गया, क्योंकि हमने 92 में एक सिचुएशन भी देखी जहां जेएनके पुलिस एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां एजिटेशन स्ट्राइक हो गई थी जेएनके पुलिस की, और उन्होंने वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन पैदा कर दी थी कि फौज को लाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने डीजीपी, उस वक्त के डीजीपी को घेर लिया था। तो कुछ गलत एलिमेंट्स थे जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत लॉयल फोर्स है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, और देश को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जेएनके पुलिस जैसी एक भी फोर्स पूरे इंडिया में नहीं है, और आई फील प्राउड कि आई हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ इट एंड आल्सो लीडिंग इट इन मोस्ट क्रूशियल टाइम। सर, हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर की हैं, बस एक इंसिडेंट कवर नहीं किया जिसको आपने बिहाइंड द सीन्स और इन फ्रंट ऑफ कैमरा और स्टार्ट से लेके एंड तक आपने उस मिशन को आपने देखा है, जो था रिलीज ऑफ मसूद अजहर। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? कंधार हाईजैकिंग हुई, वो एक भारत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। इस मतलब बहुत ही ऐसी मोमेंट भगवान न करे दोबारा भारत को देखनी पड़े।
99 में हुआ ये। और उसको जहाज जब अमृतसर में लैंड किया, उसको वहां से उड़ने नहीं देना चाहिए था, ये मेरा मानना है। आज बिहाइंड द सीन, हालांकि उस वक्त के अफसरों ने जो अपने से बेस्ट होता है वो किया, लेकिन मेरा ये मानना है उसको यहाँ से उड़ने नहीं देना, और रनवे को ब्लॉक कर देना चाहिए था। और शायद उस वक्त जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप था वो उसके रिएक्शन में देरी हुई या जिम्मेवारी नहीं ली, और इमीडिएटली वो इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए थी। डीजीपी पंजाब वो कमांडोज लेके रेडी थे, तो स्टार्म करना चाहिए था। लेकिन खैर वो जो भी हुआ, लेकिन एक बार आपके देश से वो चला गया फिर आपके हाथ में नहीं रहता है। कंधार में आपका पॉलिटिकल तालिबान से उन दिनों कोई वो नहीं था, कांटेक्ट नहीं था, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, फिर बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी जो हमारे नेगोशिएटर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनिशियल डिमांड तो पता नहीं कितने पैसे की और 100+ टेररिस्टों को छोड़ने की थी, अल्टीमेटली 3 पर एग्री किया, जिसमें अजहर मसूद भी था। तो अजहर मसूद वाज लॉज्ड यहाँ कोटबलवाल जेल जम्मू के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ उसको लॉज किया था। और मुश्ताक लटरम था और एक खालिद था। तो इसमें मेरी जिम्मेवारी लगाई गई थी। मैं डीआईजी जम्मू था, अजहर मसूद को लेकर जाना था। लेकिन जब उसको बाहर निकाला गया तो वो बड़ा बेसिकली बहुत डेंजरस आदमी है, जिसने जाते ही यहाँ से फिर वो तंजीम बनाई जैश ए मोहम्मद। और हम जानते थे कि एक बार छूटा तो ये हजारों की मौत का कारण बनेगा, और वो बना। वो पार्लियामेंट अटैक और असेंबली अटैक और कितने सुइसाइडल अटैक उसी जैश ए मोहम्मद ने किए। तो मैं समझता हूँ उसका छोड़ना जो था वो बहुत नुकसानदेह रहा। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद तो खैर एक अनरिटन पॉलिसी बनाई गई कि ऐसे लोगों को पकड़ना ही नहीं। तो आई थिंक दैट इज बेटर, क्योंकि ये ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं और वो बाद में ज़्यादा नुकसान सोसाइटी को पहुंचाते हैं। That's a cop thinking. और ऐसा है अब ये है कि कंसर्न रहता है कि आपके लोग उनके कब्जे में हैं। अब 186 कितने यात्री थे, अब उनकी जिंदगी का सवाल था। तो आई थिंक कई बार इन ए लार्जर इंटरेस्ट आपको कुछ ऐसे अनप्लेजेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। वाजपेयी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैड। लेकिन उस वक्त मैंने देखा है टीवी पे उन जो लोग वहाँ जहाज में हाईजैक जहाज में थे, उनके रिश्तेदारों ने पूरा बवाल किया, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो रहा था। तो गवर्नमेंट केम अंडर प्रेशर। आई थिंक उस वक्त सर्कमस्टांसिस, आज वैसी नौबत नहीं आएगी। टुडे इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी टू इवन कंधार से भी जहाज उड़ा के ला सकते। और सर, इफ यू हैव टू सम अप योर करियर तो कैसे करेंगे? सुपर। अगर भगवान कृष्ण मुझे दोबारा पूछेंगे कि अगले जन्म अगर हुआ, जो मुझे लगता होगा नहीं। ऐसा क्यों? इस मृत्यु लोक में दोबारा आने की इच्छा नहीं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। दोबारा माँ के पेट में जाना, फिर पैदा होना कितना तकलीफ दे होता है। तो इससे छुटकारा पाना ही जो फिलॉसफी है सनातन धर्म की, वो भगवान में लीन होना, भगवान की भक्ति में लीन होना। मैं ये समझता हूँ कि अगर आना पड़ा तो मैं समझता हूँ फिर लोगों की सेवा के लिए ईश्वर मौका दे, इसी तरह पुलिस बनकर। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली काम करो तो बहुत सारे लोगों के आंसू पहुंच सकते, इंस्टेंट जस्टिस दिला सकते। यहाँ एक्चुअली जस्टिस लोगों को नहीं मिलता है। तो आप इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लोग सब्सक्राइब करें, देखें, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। भगवान इनको तरक्की दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।